Ladies and gentlemen, esteemed guests, and members of our community, it is with great honor and privilege that we gather here today to welcome a truly inspiring beacon of courage, determination, and advocacy. In the face of extraordinary challenges, our guest has not only overcome adversity but also has emerged as a fierce advocate for the rights and inclusion of the deaf-blind community. Hailing from Pune, our guest, Zamir Sir, embarked on a remarkable solo journey to pursue higher education from SOL, University of Delhi, a journey that embodies the spirit of resilience and tenacity. Despite navigating world devoid of sight, speech, and hearing, our speaker's unwavering commitment to education and self-improvement serves as an inspiration for all of us. Through his compelling journey, our speaker sheds light on the remarkable potential that lies within each individual in their path. The story resonates deeply with our collective mission to create a more inclusive society, a society that recognizes and celebrates the unique strengths and contribution of every member. Today, we have the privilege of learning about our guest experiences, insights, and aspirations through tactile sign language. His presence carries not only the wisdom gained through personal triumphs and challenges, but also a call to action for all of us to come together and create a world where everyone, regardless of their abilities, can thrive and contribute meaningfully. As we embark on this journey of understanding and empathy, let us open our hearts and minds to the profound message our speaker brings, a message of transformative power of education. Without further ado, please join me in giving a warm welcome to a true champion of inclusivity and change, Zamir Sir. Thank you. Thank you and nice to meet you everyone. And this is the first time in SOL because when I visit here first time, there was a lot of accessibility and challenges for me, and I started to mailing on SOL. So people don't know कि ये मेल एक्सेसिबिलिटी के लिए आ रही है क्या. देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन इंटरनेट में. जैसे एग्ज़ाम मुझे कैसे देना है, इंटरनल मेरे एग्ज़ाम थे, आई वॉज नॉट अवेयर फॉर दैट. तो उसमें इंटरनेट में कुछ कनेक्टिविटी, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में भी लिमिटेशन थी. आई वॉज वरिड कि माइट बी मैं अपने एग्ज़ाम्स में फेल हो जाऊँगा. एंड आई वॉज डूइंग एडवोकेसी के अदर वे क्या हो सकता है फॉर डेफ ब्लाइंड लोगों के लिए. देन आई स्टार्टेड टू एडवोकेसी एंड क्रिएट द अवेयरनेस कि हाउ वी कैन गो फॉर दैट. देन मुझे फिर एक्सेसिबिलिटी के चैलेंज जो दिख रहे थे उसको कैसे मैं ओपन करूँ. फिर मैंने इस चीज़ पे रिसर्च R&D किया. R&D करने के बाद मैंने जो फिर मैंने पवन जी से कांटेक्ट करने का कोशिश किया. पवन मुथन जी हैं जो, उनसे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की. वो हैदराबाद से हैं. उनसे जब मैंने कांटेक्ट कोशिश की, प्लीज़ हेल्प मी, मैं कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की. उन्होंने मेरे लिए मेल करना चालू किया बिकॉज आई टैब ब्लाइंड, आई वॉज डूइंग एडवोकेसी. तो मैं पवन जी से डिस्कशन कर रहा था कि उसमें जो मैं उनको टेक्स्ट करके भेजता था क्या क्या चेंज. तो उन्होंने फिर UGC को मेरे बिहाफ पे कई सारे मेल डाले. तो उसमें UGC से हमारे पास कोई रिवर्ट नहीं आया. फिर उन्होंने SOL को मेल डाले कि इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी हमने मेल कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया. तो उसमें भी कोई रिवर्ट नहीं आया. आई थॉट कि मे बी आई विल नॉट गेट द जस्टिस फ्रॉम हियर बिकॉज मैंने कई सारे कॉल्स भी ट्राई किए. बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बोला सॉरी अभी तो बंद है और
रीज़न दिल्ली में बारिश की वजह से, जी। फ्लड की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद थी, तो मेरे पास कोई रिवर्ट नहीं आ रहा था एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने फिर उनको ये सारे पॉइंट्स बताए कि मैं जमीर, मैं डेफ ब्लाइंड हूँ, मैं अपना ये एजुकेशन है मेरा और मैं एग्ज़ाम देना है मुझे, कैसे इसको आगे प्रोसीड करें हम। तो पायल मैडम का मुझे कांटेक्ट मिला एंड शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ एसओएल। डायरेक्टर ऑफ एसओएल। तो उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी एंड शी सेड दिस इज अ वेरी इंस्पिरेशन स्टोरी फॉर जमीर एंड उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने कहा कि और भी जो आप जैसे डेफ ब्लाइंड हैं, वी वांट कि वो भी अपना एजुकेशन करें और उनको ये सारी सक्सेस स्टोरीज बताओ, जो सपोर्ट मुझे पायल मैम से मिला। Inclusivity in education is a vision of University of Delhi, and I'm happy to know that SOL is bringing forward and working for the same. Sir, advocacy के लिए तो हम आपको जानते हैं, आपकी यहाँ तक SOL तक की जो ज़िंदगी रही है, इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आपने झेली होंगी। हम ये जानना चाहते हैं, जन्म से लेके अब तक आपने क्या परेशानियाँ झेली एज एन इंडिविजुअल विद विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। या सबसे पहले जब मेरा बर्थ हुआ तो मैं डेफ था, बट एजुकेशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी नहीं पता था, मैं सांकेतिक भाषा भी नहीं जानता था, मुझे इंग्लिश लिखना भी नहीं आता था। तो जो भी जैसे जैसे मेरा बचपन बीतता गया, मेरे पेरेंट्स, उनको भी इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता कि इस बच्चे को हम क्या पढ़ाएं, क्योंकि हम गांव में रहते थे और मेरी जर्नी गांव से स्टार्ट हुई थी। मेरा बर्थ भी मेरे गांव में हुआ था। तो कर्नाटका में मेरा गांव है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, वहाँ से मैं मूव हुआ। रीज़न कि मेरे जो मेरे मम्मी जी के जो फादर थे, जी। ही वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन आर्मी। वो मुझे यहाँ लेके आए। तो मैं अपने मदर के फादर के साथ पुणे उनकी फैमिली में रहने लग गया। लेकिन वहाँ पे भी जो मेरी फैमिली सपोर्ट थी, वो ले जाना आना स्कूल से, वो भी काफ़ी चैलेंज था। धीरे धीरे मेरा वहाँ खेलना, काफ़ी गलतियाँ भी होती थी बचपन पे मुझसे, मैं गिर जाता था, बीमार भी रहता था, क्योंकि मुझे दिखता भी नहीं था चीज़ें। धीरे धीरे फिर मैंने वो चीज़ों को समझना चालू किया। जैसे ही मेरी एज अराउंड 10 साल की, जैसे धीरे धीरे मेरा जो विजन्स था आँखों का, वो लॉस होता गया। जब मैं एज अराउंड मैं 10 साल का था जी। उसके बाद एक प्लेस है पुणे में ही, ब्लाइंड लोगों का मतलब अच्छा, देन आई गॉट टू नो कि डेफ ब्लाइंड के लिए इंडिया में ऐसा कुछ स्कूल नहीं है जो हमें स्टडी दे सके। तो जब मेरा विज़न पूरा लॉस हो गया तो मैं एज ए डेफ ब्लाइंड फिर बन गया कि मैं सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता। तो जिस स्कूल में हम गए, टीचर मुझे एडमिशन देने के लिए रेडी नहीं थे। नोबडी इज़ एक्सेप्टिंग कि हाँ ये डेफ ब्लाइंड, इसको हम कैसे पढ़ाएंगे, ये अकेला डेफ ब्लाइंड है। तो एवरीबडी वाज वरिड एंड आई वाज आल्सो सफरिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग के आई वाज आल्सो वरिड कि ठीक है मैं एजुकेशन छोड़ दूँ। टैक्टाइल साइन भी वहाँ अवेलेबल नहीं था। देन लकीली मेरी मदर के फादर ने अपने फ्रेंड से कुछ कनेक्ट किया, न्यूज़ में भी देखा उन्होंने, और ही फाउंड द एड्रेस कि मुंबई में एक स्कूल है जहाँ बहुत फेमस स्कूल है, वो डेफ ब्लाइंड के लिए पहला स्कूल है मुंबई में जो डेफ ब्लाइंड के लिए। तो मेरी फैमिली भी बहुत खुश हुई और उन्होंने फिर मुझे उस डेफ ब्लाइंड स्कूल में एडमिट कराया। तो जब मेरा वहाँ एडमिशन स्टार्ट हो गया तो टीचर ऑल्सो नो द कम्युनिकेशन के टैक्टाइल साइन में होता था। और फिर उन्होंने मुझे साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कराई। प्रैक्टिस कराने के बाद उन्होंने मुझे साइन लैंग्वेज सिखाना चालू किया। फिर और वो टीचर जो आए हुए थे कहाँ से थे, अमेरिका से थे, बिकॉज उनको पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यूएस में डेफ ब्लाइंड के लिए। तो मैं वहाँ अकेला डेफ ब्लाइंड था। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट थे जो मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी थी उनको थोड़ी सी माइनर, बट एवरीबडी इज लर्निंग। तो खेल कूद में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ
बाकी बच्चे खेल कूदना नहीं जानते थे, बट मैं बहुत एक्साइटेड था कि हाँ मैं भी इनके साथ खेलूं कूदूं। बट वहाँ स्कूल में भी ऐसा एनवायरनमेंट था कि अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी तो लोग छोड़ देते कि नहीं नहीं खेलना। मैं सोचता था कि नहीं इनको खेलो, और थोड़ा सा एक होता है ना बचपन ये टाइप पे कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही। बट हाँ धीरे धीरे उन चीज़ों का फिर मैंने चेंजेस किया, और वो साइन लैंग्वेज भी सीखना चालू किया, ब्रेल भी मैंने पढ़ना चालू किया। तो फिर मुझे अवेयरनेस होने लगा धीरे धीरे कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हो। जैसे जैसे मेरा बचपन बीतता गया फिर मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए, मेरे अंदर काफ़ी स्किल्ड आई। सबसे पहले एग्ज़ाम जो मैंने 10th था, गवर्नमेंट स्कूल्स मुझे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे 10th में, क्योंकि वो डेफ ब्लाइंड के बारे में बिल्कुल सेंसिटाइज नहीं थे। मेरी टीचर ने बोला कि डू यू वांट टू कंप्लीट योर 10th क्लास। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, यस मुझे 10th कंप्लीट करना है। मैंने काफ़ी एडवोकेसी की, मेरे टीचर ने भी काफ़ी एडवोकेसी की। डेफ ब्लाइंड के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने देखा कि मेरी टीचर काफ़ी एडवोकेसी कर रही थी इन चीज़ों के लिए, और दे वर लर्निंग। बट जैसे ही मेरी टीचर ने मुझे इन चीज़ों के लिए सिखाया कि ब्रेल कैसे टाइप करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे मुझे 10th में इनरोलमेंट मिला, मैं 10th पास किया। स्लोली आई डेवलप कि हाँ फिर मैं इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहता था कि मुझे 12th भी करना है। हाँ जी। रीज़न कि मेरी टीचर ने जो एडवोकेसी की मैंने देखा, और उससे मैंने सीखा काफ़ी चीज़ें। देन आई डिसाइडेड कि मैं अब इंडिपेंडेंटली एडवोकेसी करके अपने राइट्स ले सकता हूँ। तो मैंने फिर 12th के लिए एग्ज़ाम दिया और मैं पास हो गया। देन फिर 12th लेने के बाद मेरे दिमाग में फिर एक एक्साइटमेंट आई कि वाई आई कैन नॉट गो फॉर कॉलेज। तो फिर इन्होंने एडवोकेसी करना चालू की कि हियरिंग विद द हेल्प ऑफ हियरिंग इंटरप्रेटर के थ्रू कि मैं कैसे इसमें इन्वॉल्व करूँ, कैसे मुझे एक्सेस मिलेगा। तो वेबसाइट जैसे एसओएल की वेबसाइट पे भी हमने डीए के लिए मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी एडवोकेसी की है। फाइनली मुझे एनरोलमेंट मिल गया और मैं एग्ज़ाम के लिए काबिल हुआ, और आई एम सिटिंग हियर। दैट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एडवोकेसी के बारे में तो हम इसके बाद बात करना चाहेंगे, लेकिन आपने पढ़ाई कैसे पूरी करी और आपने किन किन टूल्स का यूज़ किया? जब बाकी सारे बच्चे शायद गुमसुम होके बैठे हुए थे, आप ना सिर्फ पढ़ना चाहते थे बल्कि आप खेलना भी चाहते थे, आप ज़िंदगी जीना जानते हैं। तो आपका वो सफ़र कैसा रहा? आपने पढ़ाई, आपके दोस्त, उन सब के बारे में हमें कुछ बताइए। यस, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले स्कूल में जब इन्वॉल्व हुआ तो मैं एंजॉय बहुत करना चाहता था। मैं भी ट्रैवल करना चाहता था, सीखना चाहता था, समुद्र भी देखना चाहता था, काफ़ी चीज़ें थी, मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी। बट मैं डेफ ब्लाइंड लोगों के साथ भी बहुत सारी बातें करना चाहता था। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या सीखा, जो भी एक न्यूज़ होता है एक दूसरे से शेयर करना। तो ये काफ़ी मेरा अच्छा सफ़र था। जैसे कि मैंने डेफ ब्लाइंड लोगों को पता चला कि जमीर ने यहाँ ज्वाइन किया है, अदर भी बाकी अलग अलग जगह से भी डेफ ब्लाइंड आए, तो हम सभी का एक ग्रुप बन गया। वहाँ ग्रुप बनते ही मैंने देखा कि डेफ ब्लाइंड एजुकेशन पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, दे आर सो डम, मतलब इंटरेस्टेड नहीं ले रहे। मैं उनको इनक्रेज करता था कि नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखो, नए नए जो टेक्निक आ रही है उसके बारे में सीखो, कैसे ब्रेल, कैसे टेक्टाइल, इसका प्रैक्टिस करो। आई वॉज ऑलवेज इनक्रेज विद द डेफ ब्लाइंड। देन दे अंडरस्टूड, फिर उनको ये चीज़ें सीखने को मिली। एंड इंडिपेंडेंटली मैंने कहा कि अपने आप को इंडिपेंडेंटली बनाओ, तो उनको फिर एडवोकेसी के बारे में सिखाया कि जाओ अपने लिए, अपने राइट्स के लिए फाइट करो। तो इस तरह ये कुछ लोग सक्सेस भी हुए, कुछ लोग एडवोकेसी से, मतलब एक होता है ना डिस्क्रिमिनेशन, डेफ ब्लाइंड को बहुत ज़्यादा मिला है, बट डेफ ब्लाइंड को एडवोकेसी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी और धीरे धीरे इन चीज़ों की सक्सेस मिली। सबसे पहले क्या था कि जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे जो ट्रेनिंग में सिखाया गया, आप इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कैसे कर सकते हो। मोबिलिटी ट्रेनिंग मुझे मिली थी। तो मोबिलिटी ट्रेनिंग में मैंने देखा डेफ ब्लाइंड कैसे ट्रैवल कर सकता है, टीचर ने मुझे सिखाया, फिर मैं उस चीज़ को समझा। तो मुझे मेरे अंदर एक बहुत अच्छी एक्साइटमेंट आई कि हाँ मैं ट्रैवल। मैंने अपने टीचर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मतलब बहुत बड़ा थैंक यू बोला उनको। धन्यवाद बोलते हुए मैंने कहा अब तो मैं अकेले ट्रैवल कर सकता हूँ, यहाँ से वहाँ मैं घूम सकता हूँ। तो मैं पार्सली, मतलब बिना अपने टीचर्स को चुपचाप यहाँ से भाग भी सकता हूँ घूमने के लिए। मतलब मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे बहुत घूमना है, पर मैं वहाँ से एक बार अपने स्कूल से भाग भी गया था घूमने के लिए। तो मेरे टीचर ने, तुम भाग क्यों गए? उन्होंने मेरी फैमिली को फ़ोन किया, कई लोगों के, कि जमीर बहुत शैतान हो गया है और हमें डर रहता है कि कहीं कुछ हैपनिंग ना हो जाए इसके साथ। देवर वरिड। पर रात को जब मैं वापस आया घूमने तो मुझे टीचर ने पकड़ लिया, काफ़ी डांटा कि तुम बिना बताए क्यों गए, यू शुड टेक द परमिशन। एवरीबडी, मतलब सारे
स्टाफ, टीचर्स, सभी फैमिली मेम्बर सभी गुस्सा कर रहे थे। टीचर भी गुस्सा कर रहे, टीचर वरीड कि अरे तुम्हें कुछ हो जाता, कुछ भी हैपनिंग होती तो हम अब अगली बार ऐसा करोगे तो माइट भी पुलिस उठा के ले जाती, तो मैं कई सारे सीन हो सकते थे तुम्हारे साथ। देन आई अंडरस्टूड कि हाँ इंडिपेंडेंटली तुम घूम सकते हो, मैं समझ गया ट्रैवल कैसे करते हैं। तो ये था मेरा सफ़र अकेले ट्रैवल करने का। बिल्कुल सर, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ऑल्सो जैसे टेक्नोलॉजी की बात हुई हमारी, जी। वो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी मुझे कैसे मिली। 1999 में, उससे पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब कोई टेक्निक डिवाइसेस नहीं थी डेफ ब्लाइंड के लिए। 99 में, मतलब अगर हम देखें तो 99 से पहले हमारे पास कोई ब्रेल डिवाइस नहीं थी डेफ ब्लाइंड के लिए, जी। कोई ऐसी तकनीकी सुविधा नहीं थी जिसके हेल्प से हम कम्युनिकेट कर सकें या हमारा कोई सपोर्ट मिले। जैसे कंप्यूटर का मैंने देखा, कंप्यूटर भी मैंने सीखा, और कंप्यूटर सीखने के बाद मुझे समझ में आया कि मेल कैसे करते हैं। उससे पहले मैं मेल नहीं जानता था, इसमें भी काफ़ी चैलेंज होते थे मेल करने में। तो मेरी जो हियरिंग टीचर थी जो मुझे पढ़ाते थे, मेरे अध्यापक, उन्होंने मुझे बताया कि आप कंप्यूटर कैसे सीख सकते हो। तो कंप्यूटर सीखा, फिर मैंने मेल करना सीखा, फिर मैंने उसके लिए एडवोकेसी की कि मुझे अपने लिए कुछ डिवाइसेस की चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो मैंने काफ़ी एडवोकेसी, कई जगह से मुझे मना भी किया, प्रेशराइज भी किया गया कि नहीं तुम्हारे लिए कोई टेक्निक, तुम्हें लिखना है, पढ़ना है, सिर्फ ये ब्रेल पढ़ो। ब्रेल, जो मुझे ब्रेल के लिए प्रेशर किया था, ठीक है ब्रेल के लिए इंकरेज किया गया उन्होंने, बट एक्सेसिबिलिटी को लेके हमेशा मुझे मना ही की जाती थी कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते। तो मैंने फिर आइडिया लिया कि मैं ऐसी कुछ डिवाइस लेके आऊँ कि आप मुझे ऐसी कोई डिवाइस दो जो तो मैंने अपने टीचर से बोला मुझे कंप्यूटर चाहिए। तो मेरे टीचर ने बोला नहीं कंप्यूटर नहीं दे सकते, तो मैं चलाना नहीं आता, ये मतलब कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मैंने काफ़ी एडवोकेसी, मैंने सारे डेफ ब्लाइंड को ये चीज़ें सिखाई कि आप कैसे यूज कर सकते हो। डेफ ब्लाइंडों ने ये चीज़ एक्सेप्ट की, फिर हमने एज ए टीम बन के इस चीज़ के लिए एडवोकेसी की और टीचरों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। देन दे स्टार्टेड कि हमारे लिए कुछ तकनीकी डिवाइसेस लाइक ब्रेल, नए ब्रेल डिवाइसेस हमें मिले। फिर हमने उनको सीखा, समझा, उस चीज़ के लिए हम अवेयरनेस हुए। फिर हम बहुत एक्साइटेड हुए कि और इसको आगे और कैसे डेवलप करें और आगे कैसे सीख सकें। कुछ डेफ ब्लाइंड लोग को जॉब मिल गया जब उनको कंप्यूटर नॉलेज मिली और दे आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग नाउ। ग्रेट सर, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को टच किया, दैट इज इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जब हम ग्रेट बैटल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि पूरा देश कैसे एक साथ आकर हमारी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। पर आई थिंक सबसे पहला प्रहार एक इंडिविजुअल या एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ तब होता है जब उनकी इंडिपेंडेंस उनकी डिसेबिलिटी की वजह से छीन ली जाती है। आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, आपने एडवोकेसी के बारे में बात करी और एजुकेशन के बारे में भी। तो आपके हिसाब से और ऐसी क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे एक दिव्यांग इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी सके विद डिग्निटी? लेकिन के आज के ज़माने में ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है बहुत हेल्प करती है। जैसे देखा जाए फेसबुक में क्या है कि लोग कई सारे अपना एडवोकेसी के बारे में वहाँ बात करते हैं। डेफ ब्लाइंड हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा कि मोस्टली डिसेबल लोग इंडिपेंडेंटली नहीं जी सकते। लेकिन जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आई, लाइक मैं बात करूँ महात्मा गांधी की, ठीक है, महात्मा गांधी ने इतनी एडवोकेसी की, सारे पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया, तो फिर हमें आज़ादी मिली इस चीज़ को लेके। अगर हम एडवोकेसी नहीं करते इन चीज़ों के लिए तो हमारे पास भी आज़ादी नहीं। इसी तरह हमें भी अपने राइट मिले। जैसे अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, मैंने एजुकेशन के लिए देखा कि हाँ बुक्स हैं, स्टोरीज काफ़ी, हमारी हिस्ट्री है महात्मा गांधी की किताबों में, ये सब कुछ है। अगर हम अम्बेडकर जी की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने भी काफ़ी एडवोकेसी की इन चीज़ों के लिए। जो हमारे मतलब इतिहास जो हमारे देश का रहा है उसमें मैंने देखा, मैंने ये चीज़ समझा कि हाँ अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी इंडिपेंडेंटली एडवोकेसी करके अपने राइट्स ले सकता हूँ। ये जो हमारी तकनीकी डिवाइसेस बन रही है इनकी हेल्प से हम खुद अवेयरनेस होकर इंडिपेंडेंटली हम अपना जी सकते हैं। क्योंकि
मैंने देखा है कि लोग चाहते हैं कि इनको प्रेशराइज रखे, तो मैं चाहता हूँ नहीं, कोई अपने प्रेशर में रह के या किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जिसकी जैसी लाइफ है उसको इंडिपेंडेंटली जीना चाहिए, किसी को कहीं बांध के नहीं रखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, डेफ ब्लाइंड है, ठीक है, डेफ ब्लाइंड को जस्ट लोग समझते हैं नहीं, इसको घर में ही रखो। मेरा सोचना है कि सबको इंकरेज करो। लाइक सभी सुनने बोलने वाले लोग हैं जितने भी सोसाइटी में, वो सब अपना इंडिपेंडेंटली जीते हैं। वाई वी शुड ऑल्सो गेट दिस एक्सेस एंड इंडिपेंडेंटली वी शुड लिव। सो एज वी नो, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन। यहाँ पर नीतियों में बदलाव लाना, समाज की सोच में बदलाव लाना एक आसान काम नहीं है, और वो लड़ाई सबसे पहले शुरू होती है आपकी अपने परिवार के साथ। तो आपके अंदर इतना जोश और जज्बा डेफ ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए एडवोकेसी करने के लिए कैसे आया? जैसे कि सबसे पहले मैंने जब ज्वाइन किया, ब्लैक मूवी थी जो हमारी, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की एज ए एक्टर की। तो मैंने देखा रानी, जो उसमें एक्टर थी रानी, मैं उनसे मिला और वो बहुत ही रिच और प्राउडली, और जो हमारे अमिताभ बच्चन जी थे वो भी काफ़ी, उनसे भी मैं मिल चुका हूँ। जो ब्लैक मूवी में मैंने टेक्सटाइल के लिए रानी एंड अमिताभ बच्चन जी को मैंने ये सारी चीज़ें बताई कैसे क्या काम, जबकि उनके पास बहुत पैसा था। वो बहुत ही प्राउड घमंडी टाइप के भी थे कि उन्होंने जो भी काम किया उसमें, बट आई डिडंट गेट एनी पार्ट टू दैट, बट हाँ आई वाज जस्ट टीचिंग। तो मैंने देखा, फिर मैंने एक सेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मैंने एडवोकेसी की इस चीज़ के लिए, मैंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, सोसाइटी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ डेफ ब्लाइंड के नाम से मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने सेटअप किया 2015 में जी। उसमें जो एडवोकेसी के लिए मैंने जैसे डेफ ब्लाइंड को जोड़ता गया, बिंग लीडर उनको बनाया। हमारी टीम है पूरी लीडर की जो बहुत स्ट्रांग है, जो जैसे मुझे देख के भी लोग एक रोल मॉडल की तरह मुझे भी देखते हैं डेफ ब्लाइंड में। वो भी देखते हैं कि हाँ, जमीन ने ब्लैक मूवी में कैसे रानी और अमिताभ बच्चन की हेल्प की, उनको टेक्टाइल साइन वगैरह सिखाए, एंड देन दे शूट द मूवी। जबकि उनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है उनके पास, बट दे आर नॉट अवेयर। वो अवेयर नहीं थे कि ये सेंसिटाइजेशन की उनको जरूरत थी कि डेफ ब्लाइंड होता क्या है जी। तो जैसे डेफ ब्लाइंड कम्युनिटी में अगर रैली में देखा जाए तो इंडिपेंडेंटली जब से हम हुए, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम सब सेम ही है, बिल्कुल सेम है। तो डेफ ब्लाइंड कम्युनिटी को लोग क्यों नहीं सोचते कि ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है? लोग सोचते हैं कि नहीं, डेफ और डिसेबल लोग वो अपने इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, ठीक है। मैंने देखा है कि कई सारे डिसेबल कम्युनिटी के डिफरेंट लोग, कम्युनिटी के लोग अपने अपने ऑर्गेनाइज, इसी तरह मैंने भी फिर डिसाइड किया कि डेफ ब्लाइंड लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आई सेट अप दिस ऑर्गेनाइजेशन। सर, आई क्वाइट अग्री। कई बार हमारे समाज में, या अगर हम कम्युनिटी ऑफ डिसेबल्ड पीपल के बारे में बात करें, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंट्स हैं जहाँ पे वो शायद सिर्फ एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं। वहीं आपने साथ में बात करी सिनेमा और उसके रीच की, और जो अवेयरनेस यहाँ से क्रिएट होती है, तो आपके हिसाब से सिनेमा पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और हमारी कम्युनिटी के लिए और ज़्यादा कैसे फ्रूटफुल और बेनिफिशियल हो सकती है? जैसे कि जो भी हमारे सिनेमा में एक्टर एक्ट्रेस हैं, दे शुड गिव द रोल टू द डिसेबल्ड पर्सन, एक्चुअल जो उनका रोल होता है। ऑफ कोर्स, इससे एक अवेयरनेस आएगी, उनको एक जॉब्स भी मतलब मिलेगी, वर्क भी मिलेगा, और यहाँ से पूरे इंडिया में भी मतलब एक अच्छा क्रिएट होगा कि हाँ, ये डिसेबल लोग भी एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेस हो सकती हैं। मतलब इसमें ये नहीं देखा जाए कि कोई अगर फेमस एक्टर है उसको डिसेबल का रोल दे दिया जाए, जबकि जो एक्चुअल है उसको दिया जाए, जिससे वी कैन क्रिएट अ मोर अवेयरनेस, एक ऐसा इम्पैक्टफुल सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें सब इक्वली रहें। बिल्कुल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की और सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस की, जो हम सिनेमा के थ्रू हर एक घर तक पहुँचा सकते हैं, ताकि किसी को भी ये चीज़ अलग या अजीब ना लगे। ये नॉर्मलाइजेशन का ही एक अलग तरीका हो सकता है। यस, मे भी हो सकता है, क्योंकि सिनेमा एक ऐसी प्लेस है जो वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं इसको। बिल्कुल। तो होप कि अगर इसमें इस तरह हम एडवोकेसी करें या इस तरह का प्रयास किया जाए, तो इससे एक बहुत बड़ा अवेयरनेस क्रिएट हो सकता है। सर, जैसे अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे थे शिक्षा के अधिकार की, तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रॉन्ग्स हैं, पैरामीटर्स हैं इंक्लूसिविटी के लिए। तो एज अ डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट, आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस बारे में?
जो एनईपी हुई है उसमें जैसे मैंने देखा डिसेबल लोगों के इनपुट्स कई सारे ऐड हैं, पर उसमें डेफ ब्लाइंड के लिए कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया कि डेफ ब्लाइंड का एजुकेशन कैसे किया जाए। डेफ ब्लाइंड के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं जी, उसके बारे में कोई बात नहीं। इस चीज़ के लिए मैं भी बहुत सैड फील करता हूँ। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई, बट उन्होंने डेफ ब्लाइंड के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रखा, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए कोई ऐसा इनपुट नहीं रखा, जबकि उनको रखना चाहिए। इवन आई एम ऑल्सो डूइंग एडवोकेसी। इसके लिए मैं अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर को भी कई सारे लेटर लिख रहा हूँ कि इसमें ये चेंजेस आए कि डेफ ब्लाइंड के लिए भी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस हों। बट मैं जैसे कहना चाहता हूँ कि डेफ ब्लाइंड 21 जो डिसेबिलिटी है हमारी, ठीक है, वो सेम ही है, उसमें एक और ऐड की जाए। तो आई एम ऑल्सो डूइंग एडवोकेसी कि इस चीज़ को हम कैसे, ये 22 डिसेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि डेफ ब्लाइंड भी एक स्वतंत्र अलग डिसेबिलिटी है, तो इसको भी हम अलग कैटेगरी के बेसिस पे ऐड करें, ना कि उसको सारी डिसेबिलिटी में मिक्स कर दिया जाए। सर एक क्वेश्चन जो आपकी इस जर्नी से एक प्रमुख तौर पर निकल कर आता है वो ये है कि आपने एसओएल का चुनाव कैसे किया और आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एसओएल मैंने क्यों चुना, इसलिए मैंने देखा कि काफ़ी ब्लाइंड लोग तो यहाँ कनेक्टेड हैं, बट डेफ ब्लाइंड का अगर मैं देखूँ तो कोई नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से काफ़ी अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकता हूँ मैं, और काफ़ी डेफ ब्लाइंड कम्युनिटी को एक प्लेस मिल सकता है। तो बीइंग अ फॉर दैट पर्सपेक्टिव आई डिसाइडेड कि हाँ एसओएल कैन सपोर्ट मी। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आप अपनी एजुकेशन परस्यू करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें एसओएल ने हायर एजुकेशन में आपको कैसे सपोर्ट किया और आपके इस चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे एसओएल का जो मेरा चुनना था कि जब मैं पायल मैडम से मिला, उन्होंने तुरंत इस चीज़ को, मेरे डिसेबिलिटी को देखते हुए उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि हाँ जो भी एक्सेसिबिलिटी के तौर पे हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। ही डिसाइडेड अलॉन्ग विद दैट ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जी, कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की पे फीस होती है। उन्होंने तुरंत बोला कि ठीक है, इसके लिए हम इंटरप्रेटर की फ़ी भी देंगे। और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक सक्सेस था कि एसओएल मेरी सारी एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में देते हुए दे आर सपोर्टिंग मी विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर एंड एग्जाम डिफरेंट। तो सर आपके हिसाब से एसओएल जैसा एक इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? क्योंकि हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज की कमी होती है, तो उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए एसओएल कैसे एक फीजिबल ऑप्शन हो सकता है? एसओएल जैसे कि कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के लिए यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने सुना था कि एसओएल बहुत सपोर्ट करता है बाकी डिसेबिलिटी को, तो यहाँ अलग अलग वेज क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अवेयरनेस कि हाँ इस डिसेबिलिटी के लिए हम अवेयरनेस जैसे हम क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली एसओएल भी अपना सेंसिटाइजेशन हो गए या फिर जैसे वर्कशॉप क्रिएट करके पीपल को सपोर्ट कर सकता है। जी सर, हम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे, एज अ इंडिविजुअल विद डेफ ब्लाइंड डिसेबिलिटी आपकी जर्नी काफ़ी संघर्षों से भरी रही है लेकिन उतनी सक्सेसफुल भी रही है। आपने उतने ही नए आयाम क्रिएट करे हैं बाकी लोगों के लिए। आप उन फैमिलीज़ के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं, ताकि उनका पालन पोषण और उनका भविष्य बेहतर और थोड़ा ज़्यादा सरल हो सके? मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारे डेफ ब्लाइंड हैं उनको घर में बैठाइए मत, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, उनको बुलाइए। उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, फैमिली मेम्बर्स सभी, जैसे कि देखा जाए मैंने डेफ ब्लाइंड की शादियाँ कर देते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, उनको इनक्रेज करिए जॉब के लिए, फैमिली वो अपनी बना सकें, अपनी फैमिली को शेविंग कर सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। जैसे आप एक दूसरे पे मतलब हेल्प बुला के कि आप मेरी मदद कर दो, या किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, इंडिपेंडेंट बनाइए लोगों को, फैमिली को इनक्रेज करें कि वो अपने बच्चों को बाहर लेके आए, सोसाइटी में इन्वॉल्व करें। जैसे मैंने देखा है कुछ डेफ ब्लाइंड लोग हैं तो वो लाइक पुअर की तरह मतलब काम करते हैं, अपना भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। तो आई वांट कि वो लोग भी काम करें प्रोफेशनल तरीके से, पहले एजुकेशन लें, एजुकेशन लेने के बाद जॉब करें, उससे अर्निंग करें, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और उनकी लाइफ
अदर व्यक्तियों की तरह होती है वैसे एंजॉय कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते हैं। Agreed. So, education is the only step for a life full of dignity for everyone, including a person with disability. सर, एक उन बच्चों के नाम, आपका संदेश जो खुद डेफ ब्लाइंड है, जिन्हें आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ एसओएल ने जैसे मुझे चुना, मेरी फर्दर स्टडी जो मेरी हायर स्टडी के लिए मुझे जो सपोर्ट दिया, ठीक है, आगे पढ़ने के लिए, तो मैं यही बाकी डेफ ब्लाइंडों को दिखाना चाहता हूँ कि देखो आप जितने भी बच्चे डेफ ब्लाइंड हैं, आप भी ये देख के शौक हो रहे जहीर को एसओएल ने सपोर्ट किया, जहीर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। जितने भी डेफ ब्लाइंड हैं वो अपना आगे का एजुकेशन ले सकते हैं। और जो भी बच्चे हैं, मुझे फील होता है कि हाँ डेफ ब्लाइंड मैंने देखा, अरे तुम डेफ ब्लाइंड हो, तुम इन चीज़ों को समझोगे, मैं भी एक डेफ ब्लाइंड हूँ, जी। तो आप खुद से करो, इंडिपेंडेंटली करो, सीखो चीज़ों को, आगे बढ़ो, तो आप कर सकते हो। हमने ये काफ़ी बार देखा है कि नीतियों के बावजूद काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ को सपोर्ट नहीं करते या नहीं कर पाते हैं। ये जानकर एक सुखद अनुभव होता है कि एसओएल उन इंस्टीट्यूशंस में शुमार नहीं है। तो क्या आप एसओएल, वहाँ के फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जिन्होंने ये सफ़र आपके लिए आसान बनाया? यस, थैंक यू सो मच एसओएल कि आपने ये सारा सपोर्ट मुझे दिया। बीइंग अ डेफ ब्लाइंड, मैं ये रियलिटी में देख पा रहा हूँ, एंड स्पेशली फॉर पायल मैम कि जो यहाँ की डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो भी सपोर्ट किया मुझे उन सेम टाइम पे, उन्होंने बिल्कुल डिले नहीं किया इन चीज़ों के लिए कि कुछ होता है ना तो डिले करते हैं। तो ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन स्टोरी बन गई कि आप जैसे लोग काफ़ी अवेयर हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये बाकी डेफ ब्लाइंडों को मैं एक स्टोरी तौर पे वो भी अपना एजुकेशन ले सकते हैं, उनको बता सकता हूँ। तो ये मेरा आई थिंक पहला ऐसा अनुभव है कि ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एक डेफ ब्लाइंड को अपॉर्चुनिटी दी, और पायल मैम ने इन चीज़ों को समझा और मेरे लिए रास्ते खोले आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि पायल मैम ने मुझे फर्स्ट डे ही इनकरेज किया कि हाँ आप इन चीज़ों को करो, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम देंगे। तो एसओएल बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और मैं चाहूँगा कि जो भी डेफ ब्लाइंड हैं, जहाँ भी एक्सेसिबिलिटी या एजुकेशन का चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग एसओएल आइए, एसओएल आपको सपोर्ट करेगा। और मैं चाहता हूँ कि हाँ जैसे मैं आया आप सभी आएँ, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह ये जर्नी मेरी आगे जाएगी, मेरे साथ साथ बाकी डेफ ब्लाइंडों की भी जर्नी बहुत अच्छी जाएगी आगे। Thank you so much, Zamir sir and Atul sir, for accepting our invitation and taking out precious time from your schedule and interacting with us. The insights were really helpful for us and all of our viewers. Today, as we draw close to this enlightening session filled with insights, inspiration, and a powerful call to action, it is my privilege to extend heartfelt gratitude on behalf of all of us gathered here today. First and foremost, I want to express our deepest appreciation to Zamir sir and Atul sir for sharing their incredible journey with us. Your story has touched our hearts and reminded us of all the indomitable human spirit that propel us to overcome the challenges and reach for greatness. We are profoundly grateful to the Anubhuti Center and SOL for their unyielding commitment to providing inclusive education and support to the individuals like our esteemed speaker. Your dedication serves as a shining example of the positive impact that center like yours can have on shaping lives and fostering an inclusive society. Our sincere thanks extend to each and every one of you who are with us today. Your presence not only adds value to the show, but also signifies your shared commitment to building a world where barriers are dismantled and opportunities that are accessible to all. As we leave this gathering today, let us carry with us the stories and messages shared by Zamir sir. Let us be inspired to make a difference in the lives of those who face challenges. And let us work together to create an inclusive society
where everyone can realize their own potential. Thank you once again for being a wonderful audience. Your presence and support are deeply appreciated. Let us move forward with renewed determination to make our world a better place for everyone. Thank you.